என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் எங்கே ஓடுவேன். என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் எங்கே ஓடுவேன். எங்கே ஓடுவேன் உன் சமூகத்தை விட்டு. உம்மை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி ஒழிய முடியுமோ. எங்கே ஓடுவேன் உன் சமூகத்தை விட்டு. உம்மை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி ஒழிய முடியுமோ. என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் இங்கே ஓடுவேன். யோனாவை போல நான் அடித்தட்டிலே படுக்கை போட்டாலும் விடமாட்டீரே. யோனாவை போல நான் அடித்தட்டிலே படுக்கை போட்டாலும் விடமாட்டீரே. ஓடி போனாலும் தேடி வந்தீரே. மீனை கொண்டாட்டிலும் மீட்டு வந்தீரே. ஓடி போனாலும் தேடி வந்தீரே. மீனை கொண்டாட்டிலும் மீட்டு வந்தீரே. என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் இங்கே ஓடுவேன். பேதுரு போலும் உம்மை தெரியாதென்று மறுதலித்தாலும் நீர் விடவில்லையே. பேதுரு போலும் உம்மை தெரியாதென்று மறுதலித்தாலும் நீர் விடவில்லையே. துரோகம் செய்தாலும் தூக்கி விட்டீரே. மந்தையை மேய்க்கும்படி உயர்த்தி வைத்தீரே. துரோகம் செய்தாலும் தூக்கி விட்டீரே. மந்தையை மேய்க்கும்படி உயர்த்தி வைத்தீரே. என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் எங்கே ஓடுவேன். என்ன மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் எங்கே ஓடுவேன். உங்க அழைப்பு இருந்ததால நாளிந்து போகவில்லை. உங்க அன்பு இருந்ததால நான் கைவிடப்படல. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. உங்க அழைப்பு இருந்ததால நான் இன்று போகவில்லை. உங்க அன்பு இருந்ததால நான் கைவிடப்படல. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. எத்தனை பேர் என்னை அழிக்க நினைக்கும். உமலியாத அழைப்பு என்னை காத்து கொண்டதே. துரோகங்கள் வீண் பலிகள் என் மேல் இருந்தும்
உன் கரைப்படாத கரங்கள் என்னை தாங்கி கொண்டது. எஜமானனே, என் எஜமானனே, என்னை அழைத்த எஜமானனே, 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 என்றும் நடத்தும் எஜமானனே. உங்க அழைப்பு இருந்ததால நான் அழிந்து போகவில்லை. உங்க அன்பு இருந்ததால நான் கைவிடப்படல. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. மனிதர் அடைத்த கதவுகள் ஒன்றோ இரண்டோ, நீர் எனக்காக திறந்தது 1000 அன்றோ. உழைக்கப்பட்டு உம்மை விட்டு ஓடி ஒளிந்தும் என்னை துரத்தி வந்து ஊழியத்தை துவங்க செய்திரே. என் ஆதாரமே, என் ஆதரவே, அழைத்த அழைப்பின் காரணரே. ஆதாரமே, என் ஆதரவே, அழைத்த அழைப்பின் காரணரே. அழைப்பு இருந்ததால நான் அழிந்து போகவில்லை. உங்க அன்பு இருந்ததால நான் கைவிடப்படல. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. அழைத்தவர் நீரோ உண்மையுள்ளவர். என்னை உயர்த்தி வைக்கும் மேன்மையான திட்டம் கொண்டவர். என்ன வந்தாலும் ஏது வந்தாலும் தொடர செய்தவர். நான் என்றென்றும் சார்ந்திருக்கும் தகுதியுள்ளவர். உம்மை நம்பிடுவேன், உம்மை பின்தொடர்வேன். இறுதி வரை உம்மை உம்மை நம்பிடுவேன், உம்மை பின்தொடர்வேன். இறுதி வரை உம்மை சேவிப்பேன். இந்த அழைப்பு இருந்ததால நான் அழிந்து போகவில்லை. உங்க அன்பு இருந்ததால நான் கைவிடப்படல. உங்க கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். உங்க அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. இயேசுவின் கிருபை என்ன காப்பதால வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன். அவர் அன்பிற்கு நிகரே இல்லை. சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெறிய யூதா முதலில் செல்லட்டுமே. நம் தேசத்தின் நுகத்தை உடைத்தெறிய துதிக்கும் வீரர்கள் எழும்பட்டுமே. சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெறிய யூதா முதலில் செல்லட்டுமே. நம் தேசத்தின் நுகத்தை உடைத்தெறிய துதிக்கும் வீரர்கள் எழும்பட்டுமே. யூதாவின் செங்கோல் துதியின் ஆளுகை நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். யூதாவின் செங்கோல் துதியின் ஆளுகை நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெறிய யூதா முதலில் செல்லட்டுமே. தேசத்தின் நுகத்தை உடைத்தெறிய துதிக்கும் வீரர்கள் எழும்பட்டுமே.
எழுந்து துதி, தேவ சமூகம் உன்னோடுதான். துதிப்பதற்கே நீ அழைக்கப்பட்டாய், துதி அபிஷேகம் உன்னோடுதான். யூதாவே நீ எழுந்து துதி, தேவ சமூகம் உன்னோடுதான். துதிப்பதற்கே நீ அழைக்கப்பட்டாய், துதி அபிஷேகம் உன்னோடுதான். யூதாவின் சிங்கம், துதியில் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். துதியின் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். யூதாவே நீ சகோதரரால் புகழப்படுவாய் என்றும், உன் கரமும் சத்துருவின் பிடரியின் மேலிருக்கும். யூதாவே நீ சகோதரரால் புகழப்படுவாய் என்றும், உன் கரமும் சத்துருவின் பிடரியின் மேலிருக்கும். யூதாவின் சிங்கம், துதியின் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். யூதாவின் சிங்கம், துதியின் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். சமாதானத்தின் தேவனவர் உன்னை விட்டு நீங்க மாட்டார். ஜாதிகளும் ஜனங்களுமே உன்னிடத்தில் சேர்த்திடுவார். சமாதானத்தின் தேவனவர் உன்னை விட்டு நீங்க மாட்டார். ஜாதிகளும் ஜனங்களுமே உன்னிடத்தில் சேர்த்திடுவார். யூதாவின் சிங்கம், துதியின் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். யூதாவின் சிங்கம், துதியின் நான்கை, நம் தேவனின் ராஜ்யம் என்றும் துதியின் ராஜ்யம். வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமல் உம் புகழ் நான் பாடுவேன். என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமல் உம் புகழ் நான் பாடுவேன். என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பரலோக கவனத்தை
விலகாத பிரியாத உம் சமூகமே அதுதான் நிரந்தர சுதந்திரமே வேறொன்றும் வேண்டாம் நீர் போதுமே நீர் போதும் நீர் போதுமே விலகாத பிரியாத உம் சமூகமே அதுதான் நிரந்தர சுதந்திரமே வேறொன்றும் வேண்டாம் நீர் போதுமே நீர் போதும் நீர் போதுமே ஹalleluya 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 வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரே வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே ஓயாமல் உம் புகழ் நான் பாடுவேன் என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே ஹalleluya 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 यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, अरे महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, अरे महिमा गाए सभी। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया।
तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा ये जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पूछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। एलो शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना। Hallelujah. Praise the Lord. Psalm 67, a song of thanksgiving. God, be merciful to us and bless us. Look on us with kindness, so that the whole world may know your will, so that all nations may know your salvation. May the peoples praise you. O God, may all peoples praise you. May the nation be glad and sing for joy, because you judge the peoples with justice and guide every nation on earth. May the peoples praise you, O God, may the all peoples praise you. The land has produced its harvest. God, our God, has blessed us. God has blessed us. May all people everywhere honor him. Amen. भजन संहिता 67 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें।
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भाई मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. कैसे हो आप लोग? How are you all? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका आशीर्वाद करता हूँ। We greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. जो लोग मेरे को सुन पा रहे हो लोग एक हालेलुया बताएंगे। बहुत कुछ चेंज हो गया चर्च में। There are a lot of changes in the church. 2 महीना में नहीं आया तो बहुत चेंजेस लग रहा है। I have not been here for the past 2 months. कितने लोग 2 महीने से आ रहे? How many of you are here for the past 2 months? अच्छा लग रहा है चेंजेस। It's good to see the changes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योरसेल्फ। बहुत मुख्य है खुद को बदलना। व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, जब आप खुद को बदलोगे, थिंग्स विल चेंज अराउंड यू। जो चीज है वो अपने आप बदलने लगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद को बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिकली योर सराउंडिंग विल बी चेंज्ड। आपका सराउंडिंग जो है वो भी बदलेगा। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बता How रहा हूँ? many of you are understanding what I'm आप trying? जब बदलेंगे When you change, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। everything changes. वेरी ऑफ्टन वी वांट पीपल टू चेंज फॉर अस। काफी टाइम हम लोग हमारे लिए वी बदलना ऑलवेज चाहिए। कीप ऑन कंप्लेनिंग दे आर नॉट चेंजिंग। हम ये बोलते कि वो बदल नहीं रहे। ऑलवेज चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। बदलावट जो है वो आपसे द मोमेंट यू विल चेंज, जैसे आप बदलोगे एवरीथिंग विल चेंज। सब कुछ बदल। अच्छा लग रहा है ये सारे चेंजेस को देख के। इट्स गुड टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस नाउ। सम चेंजेस आर वेरी गुड, कुछ चीजें चेंजेस अच्छी बात है, सम चेंजेस आर नॉट गुड। कुछ चीजें अच्छी बात नहीं। You have to decide which you should follow. आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। Some changes will honor God. कुछ जो बदलावट है वो परमेश्वर को आदर देता है, Something does not honor. कुछ नहीं बदलावट देता। Hallelujah. हालेलुया। So always when you are changing something, जब आप कुछ बदला रहे हो think, सोचो will it honor my God? ये मेरा परमेश्वर को honoring आदर your देगा God, क्या? अगर परमेश्वर को You आदर can दे change anything. तो आप कुछ भी बदलो। If it is not honoring your God, और जब ये परमेश्वर never को change. आदर नहीं दे हम रहे, अपना आंखों को बंद करेंगे। लेट्स कीप आवर आईज क्लोज्ड। We'll thank God for this wonderful 4 months of 2026. हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। God has been so good to us for the last 4 months. ये जो 4 महीना बीता है परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छे थे। This is a new month which God has gifted us. ये एक नया महीना है जो परमेश्वर ने अपने लिए दिया है And we should be thankful for whatever He has done in our life. और हम धन्यवाद करना चाहिए जो भी परमेश्वर ने अपने लिए दिया। Because many people started this year काफी लोग ये साल शुरुआत किए with a new hope, एक नया आशा के साथ, but they are no more in this world. पर वो दुनिया में भी नहीं है। The only reason we are still alive, हम क्यों आज तक जीवित हैं? it's only because of His grace. क्योंकि उनका अनुग्रह है। We have done nothing to get this grace. ये अनुग्रह पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, It's purely His love on us. ये उनका प्यार है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, today you and me आज आप और मैं are alive. हम जीवित हैं It's only because of God's love on us. क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार के We वजह are not worthy for it, से। हम इसके लिए लायक नहीं है, but He makes us worthy. वो हमें लायक बनाता है। Thank you, God, for this wonderful month. धन्यवाद परमेश्वर है नया महीने के लिए। You have brought us so far, God. अभी तक आपने हमें You चलाया, have helped us, God. आपने हमें मदद की है, You have protected us, God. हमें सुरक्षित You रखा have है, never let us go down, God. हमें कभी नीचे जाने नहीं The दिया। only reason we are alive is you, God. हम इसलिए जीवित हैं We believe this month you are going to do great things in our life, God. क्योंकि हम विश्वास करते हैं ये महीना आप बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं। Whatever we have lost in last 4 months, God, जो भी हमने खोया ये 4 you महीने will में, return us this month, God. वो हमें ये महीने में मिलेगा। We believe, God, you are doing a great thing in our life, God. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप बड़ा काम हमारा लाए। Thank you for bringing my people today, God. आपने लोगों को लाया इसलिए धन्यवाद। Thank you for bringing me here today, God. मुझे इधर लाया इसलिए Thank you धन्यवाद। for this wonderful place you have given us, God.
ये ग्रेस आपने जो दिया इसलिए धन्यवाद। Thank you for this wonderful place you have given us, ये जो God. जगह दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। God, bless each and everyone who is present here, God. जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हर एक जन को आशीर्वाद दो। Bless the people who are watching online today, God. जो लोग ये समाचार ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दो। Bless the people who are not able to make it today, God. जो लोग आज नहीं आ पाए उन्हें भी आशीर्वाद दो। Let your word heal each and everyone who is here, God. परमेश्वर जो भी है हर एक जन को आपका वचन चुने। Hide me, God, मुझे छिपा कर and you be revealed, God. आप प्रकट होना Let your name be glorified, God. और आपका नाम की महिमा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। शुरुआत से लेकर अंत तक आप संभालना परमेश्वर। God, from the beginning till the end, you take care of us. हम घटना चाहिए और आप बढ़ना चाहिए We प्रभु। must decrease and you must increase. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते In the हैं, name of Jesus, we pray. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. एक बार जोर से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा Let's करें। clap our hands. हालेलुया। कैसा लग रहा है नया महीने में आके? How it is for you to see the new month? हालेलुया। कितने लोग जिंदा है? वो लोग सिर्फ हालेलुया बोलो। The people, मतलब लोग जिंदा है। हालेलुया। बताओ हाथ भी उठा के, नहीं तो पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट बंद कर देंगे पटाखे। अब कभी मूवमेंट करना पड़ता है कि बताने कि हम जिंदा है। हालेलुया। ये महीना this month, बहुत गर्मी का महीना है। it is a month that कुछ लोगों को मई महीना अच्छा लगता है some people like May क्योंकि वैकेशन है, because it और is जब तक vacation. कॉलेज स्कूल में तब तक Till the time you're in school एक and बार लाइफ colleges. में काम करने चालू कर देंगे ना, Once you start working, तो मई महीना अच्छा नहीं लगता है you will not like May क्योंकि इतना गर्मी रहता है, ट्रैवल नहीं कर पाते। because it's so hot you can't कितने लोगों को travel. मई महीना अच्छा लगता है? जो जॉब में जा रहे हो लोग, The people who are working, how many of you like May month? स्कूल स्टूडेंट्स, कितने लोगों को मई महीना अच्छा लगता है? वेकेशन मंथ। परेश भाई भी स्कूल जा रहे लगते हैं। हालेलुया। इतना गर्मी रहता ना, It's ऐसा so लग- sunny outside. ऐसा लग रहा है कि रोड पे भी एसी लगा दिया तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा रहेगा, है ना? Feel the need of an AC even while we are traveling. बहुत अच्छा है, बहुत पानी पीना है ये महीना। You have to drink a lot of water. ज्यादा बीमारी गर्मी से आता है। A lot of sickness arises due to sun. अपने आप को आप लोग ही संभाल लेना, You have to take care of yourself. और कोई आपको नहीं संभालने वाला है। No one else is going to take care. हालेलुया। Hallelujah. बाजू में देख के बोलना, तेरे को तुझे ही संभालना है। Tell your neighbor you have to take care of हाँ, yourself. मैं तेरे को नहीं संभालेगी बोलो, मैं तेरे को नहीं संभालेगी। Take care of yourself. अच्छे से बोलो, आपको खुद आप ही संभालना है बोलो। Tell that you have to take care of yourself. हाँ, दुनिया में कोई भी आपको नहीं संभालेगा। Nobody else is going to take care of you. Hallelujah. Hallelujah. ठीक है, नए महीने में आए हैं, In the month of May, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहे, what God wants to talk to ये आप ध्यान से सुनना, this we have to hear. क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा दे सकता है। Word can deliver you. आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। Your focus should only be on God. हालेलुया। ये महीने जब मैं परमेश्वर को पूछ रहा था कि मैं 2 महीने के बाद डोंबिवली जा रहा हूँ परमेश्वर, When I asked God, after 2 months I'm going to Dombivli, आधे लोग तो मेरे को भूल भी गए रहेंगे, half of the people would have forgotten. आधे लोग को पता भी नहीं कि मैं है कि नहीं, ऐसा करके Half of the people do not know me whether कितने लोग भूल गए I'm. मेरे को। How many of you forgot me? बहुत लोग ऐसे रहे, मतलब 2 महीने में भूल गए, मतलब 6-7 महीना नहीं आएगा तो परमेश्वर को मैं पूछ रहा था, परमेश्वर आप क्या बात करना चाह रहे? I was asking God what you want me to speak. ये मई का महीने में This month of May, आप आपके लोग से क्या बात करना चाहते हैं what you परमेश्वर? want to talk to your people. Let's read from Revelation 21:5.
प्रकाशित वाक्य में 21 में 5 पढ़ेंगे। रेवलेशन 21:5। Then he who sat on the throne said, हाँ Behold, हाँ I make all things new. हाँ And he said to me, Write, for these words are true and faithful. आमेन। Let's read in Hindi. 21:5 வெளிப்படுத்து 21:5 சிங்காசனத்தின் மேல் ஆஹா 21:5. இருக்கிறவர், ஆ இதோ நான் ம். சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். ஓகே பின்னும் அவர், ஆ. இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளே எழுது என்றார். हालेलुया। और कोई हिंदी में? और जो सिंहासन पर बैठा था देखो ध्यान से सुनो बाकी लोग, जो सिंहासन पे बैठा है, सिंहासन पे कौन बैठता है? ये सब आराम से परेश भाई, एक एक लाइन। फिर उसने कहा कि लिख दे, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ओके ठीक है, ध्यान से सुनो। सिंहासन पे कौन बैठता है? Who sits on the throne? अरे बोलो, आवाज से बोलो, सो मत। सिंहासन पे कौन बैठता है? आवाज से। Who sits on the throne? सिंहासन पे कौन बैठता है? Who sits on the throne? आवाज ही नहीं आ रहा। सिंहासन पे कौन बैठता है? Jesus. हाँ। सिंहासन पे बैठे हुए परमेश्वर अपने लोग से क्या बोल रहा है? What is God saying? कोई एक जन हिंदी में आवाज से पढ़ सकता हो वचन को? कोई नहीं? और किसी वो सिंहासन पर बैठा था, ध्यान से सुनो। सिंहासन पे वो बैठा है, सिंहासन पे बैठा था। उसने कहा मैं सब कुछ मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. बाजू में बोलो, सिंहासन पे बैठा हुआ परमेश्वर बोल रहा Tell है to your neighbors that God who is sitting on the वो throne, सब कुछ नया करने वाला He है। is going to make everything new. हालेलुया। बोलो Hallelujah. बोलो, ताकि आजू बाजू वाले लोग की जिंदगी में कुछ तो नया होने दो। बोलो, He is परमेश्वर going to कुछ make everything नया कर रहा है। बोलो He is going to make everything. बोलो, नया नया कर रहा है। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। Hallelujah. सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर अपने लोग को देके बोल रहे हैं कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ। God is saying from the throne that He is going to make everything new. और उसके आगे फिर उसने कहा हाँ लिख ले, लिख ले, क्योंकि ये वचन क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। हालेलुया। Hallelujah. गॉड इज टेलिंग टू यू टुडे, परमेश्वर बता रहे हैं आई एम आपको, गोना मेक एवरीथिंग न्यू, मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। एवरीथिंग न्यू। सब कुछ नया व्हाट बना आई एम रहा गोना हूँ। डू, क्या करने वाला इट्स हूँ? ट्रू वो सच है एंड ट्रस्टवर्थी। और वो विश्वास। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ये महीना कुछ तो नया करने वाला है, Something new is going to happen कुछ this तो month. जिंदगी में नया होने वाला है। Something new is going to आपके happen. काम में कुछ तो नया होने वाला In है, your work, something आपके is. व्यापार में कुछ तो नया होने In वाला your है, business, something new is आपके going. परिवार में कुछ तो नया In होने your वाला है, family, something new is going to आपके happen. अंदर भी कुछ तो नया होने वाला है। Inside you, something new is going Hallelujah. to happen. Hallelujah. कितने लोग तैयार है कुछ नया मेरे जिंदगी में होने वाला है इसके लिए? How many of you are ready? अरे होना चाहिए। कितना दिन पुराना जैसा रहेंगे, नया होना बहुत जरूरी है। It's been a long time we are Hallelujah. saved. Hallelujah. God is promising you this month, परमेश्वर वाचा कर रही है महीने I'm going to make everything new. मैं सब कुछ नया बना I'm रहा going to definitely make everything new. हूँ। मैं सब कुछ नया बना रहा हूँ। Write and keep. ये लिख के रख। What I'm telling is trustworthy. ये जो मैं बता रहा हूँ वो विश्वास योग्य और सत्य Hallelujah. है। Hallelujah. ये वचन सुन के बहुत खुश कितने लोग हुए? How many of you are very happy? मैंने भी खुश हुआ। अगला सवाल, क्या है नया? What is the हालेलुया। आँख ही नहीं, नया क्या है? What is the new? घर पे गए तो वही दाल चावल है, Same food we have at वही सांबार है, same वही sambar. मम्मी है, वही डैडी है। We have the same parents. उसका मतलब नया मम्मी डैडी है ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो तो not नया going बोलते क्या बोले, नया कुछ मिलने वाला है, मतलब नया घर पे सब नया हो जाएगा। हालेलुया। When I say new, that doesn't mean you are going to get new parents. परमेश्वर नया कैसा करता है ये मेरे को परमेश्वर ने समझाया। God taught me how he makes things new. हालेलुया। Hallelujah. I was reading the book of Acts 10. प्रेरितियों में हाँ। Acts chapter 10. I was reading this book. When मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, this chapter. Let's all read it together. हिंदी में ले लेना जॉन। अब प्रेरिति में 10 में 1 से लेके पढ़ना, बाकी लोग अब लिख के रखना, घर पे जाके पढ़ना। अपोस्तलर 10 1 Let's read in Hindi. Let's read in Hindi Acts chapter 10 verses 1 onwards. कैसरिया में ध्यान से सुनो। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक हाँ एक मनुष्य था ओके जो इतालियानी नाम हाँ सैन्य दल का सूबेदार था। ओके वह भक्त था हाँ। और अपने सारे घराने समेत हाँ परमेश्वर से डरता था हाँ और यहूदी लोगों को हाँ। दान देता हाँ। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
अब एक मनुष्य था जो एकदम भक्त था, परमेश्वर को डरता था और लोग को दान देता था. There was a man named Cornelius who feared God and who gave alms generously to the people. मसीह को नहीं जानता था वो, ध्यान से सुन लेना, He never knew God, पर वो सच्चा था but he was true अपने लोगों को, for his people. और परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर को वो नहीं जानता था, He feared God, but he did not know who is और God. हमेशा लोग को दान देता था. And he always gave alms. एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, 3 पढ़ेंगे. Once he was praying, हाँ उसने दिन के तीसरे पर हाँ निकट दर्शन में हाँ स्पष्ट रूप से हाँ देखा कि हाँ परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, ओके हे कुरनेलियुस। हाँ उसने उसे ध्यान से देखा हाँ और डर कर कहा, ओके हे स्वामी, हाँ क्या है? हाँ उसने उससे कहा, हाँ तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान ओके. स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया. अब परमेश्वर को ये बंदा जानता ही नहीं था, he never पर knew God. इसका प्रार्थना और सच्चा दान His prayers and his honest alms, परमेश्वर तक पहुंचा. it reached God. देखो, इस कुछ तो नया है, Something new. ध्यान से सुन लो आप लोग. ये परमेश्वर को कभी नहीं जानता था, He never knew God. पर ये जो भी चीज में था उसमें सच्चा था. But whatever he did, he was उसको जो honest. भी परमेश्वर का काम दिया गया था Whatever work he was given, उसमें वो सच्चा था. he was honest. इसीलिए परमेश्वर आके बोल रहे तेरा प्रार्थना और ध्यान को मैंने सुन लिया. That's why God is answering. देखो, now that I परमेश्वर have कुछ heard तो your नया prayer. कर, ये ज्यूज नहीं था, ये परमेश्वर के लोगों में से नहीं था, He was not a people forming part of people of ये God. अन्य जाति लोग में से था. He was a Gentile. देखो, उस समय में अन्य जाति लोग के पास कभी देवदूत नहीं जाते थे. The angel of the Lord do not appear ध्यान to से सुन लो, Gentiles. अन्य जाति लोग के पास देवदूत नहीं जाते थे. The angels do not go to Gentiles. पर for यहाँ पर visit. पहले बार कुछ नया हो रहा है. But something new is happening. अन्य जाति मनुष्य के पास The Gentile देवदूत जाके बोल रहा है, angel goes, तेरा प्रार्थना को मैंने सुना I have heard your prayers, that's what और the तेरा Lord said, दान को मैंने अपना लिया, and I have accepted your offering. इसीलिए मैं परमेश्वर से यहाँ पर आया हूँ. That's why I have come from God. Hallelujah. Hallelujah. समझ रहे कितना कुछ नया हो रहा है. See how new things are happening. अब तक नहीं हुआ था बाइबल में, Till now it had not इस happened. बार हो रहा है. It's happening now. दिस इज हाउ गॉड विल डू समथिंग न्यू इन योर ऐसे ही लाइफ. परमेश्वर कुछ नया आपका जीवन में यहाँ पर करेगा. उसके बाद वो देवदूत बोल रहा है, तू एक काम कर, What the angel is saying, you do पत्रुस नाम one का thing. एक सेवक है, There is one आप person, घर पे जाके पूरा पढ़ लेना, उसको बुलाना अपना घर पे, there is a servant of वो God. तेरे को बताएगा कि परमेश्वर कौन है. There is a servant of God. Call him to your home and he will show you who is God. अब एक मनुष्य की जिंदगी में कुछ तो नया होने वाला है. Now a man is going to experience अब यहाँ पर something new. पीटर के साथ क्या हो रहा है वो देखना. Now what is happening to Peter? 9 में पढ़ना. Let's read 9 of the same chapter. दूसरे दिन हाँ जब वे चलते चलते हाँ नगर के पास पहुंचे, हाँ, तो दोपहर के निकट ध्यान से सुना. दोपहर के निकट पतरस, छत पर प्रार्थना करने अभी यहाँ पर देखो, पतरस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, ठीक है. Now Peter is praying. हाँ उसे भूख लगी हाँ, और कुछ खाना चाहता था, हालेलुया. परंतु जब वे तैयार कर रहे थे हाँ, तो वह बेसुध हो गया। ध्यान से सुनो, पतरस भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है. एक मनुष्य प्रार्थना किया, दान किया, देवदूत ने उसको एक चीज बताया कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ. क्या बताया? I'm going to do उसने something. मान लिया, अपना लिया, ठीक है मैं नया करने वाला हूँ, वो तैयार हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर जो परमेश्वर को ऑलरेडी जानता है आपके और मेरे साथ, ये भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है. ध्यान से सुनो, एक ही स्टोरी में 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं. एक जो अन्य जाति है वो प्रार्थना कर रहा है, उसके पास देवदूत बोल रहे मैं कुछ नया करने वाला हूँ, उसने मान लिया. अब यहाँ पर परमेश्वर के लोग में से एक, अपने में से एक प्रार्थना कर रहा है. इससे देवदूत क्या बात कर रहे हैं? ध्यान से Now सुनो. let's see. There was a man Cornelius who did not knew God, but he was praying, and an angel appeared. And then there is Peter who knows God, and he is praying, and angel appeared to him. हाँ, पढ़ेंगे. और उसने देखा हाँ, कि आकाश खुल गया आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर और एक बड़ी चादर पात्र के समान हाँ चारों कोनों से हाँ, लटकाया हुआ ओके पृथ्वी की ओर उतर रहा है, ओके, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के हाँ चौपाए और हाँ रेंगने वाले जंतु हाँ. और आकाश के पक्षी थे। ध्यान से सुनो, पतरुस प्रार्थना कर रहा था, Peter was praying. उसको भूख लगा. He was hungry. कोरोनेलियस और एक बंदा कोरोनेलियस प्रार्थना कर रहा था, Cornelius is praying. उसको भी प्रार्थना में प्यास था.
he was also thirsty. उसका प्यास के लिए देवदूत ने एक उत्तर दिया, Angel appeared to him. उसने वो मान लिया। He accepted. अब यहाँ पर पत्रोस प्रार्थना कर रहा है, Peter is praying. भूख लग रहा है, He is hungry. ऊपर से खाना उतर गया है The food came. और देवदूत बोल रहा है ये ले इसको खा ले। And the angel is saying, eat. तो 14 में आप और मैं क्या रिप्लाई करते जब गॉड कुछ नया करते, तो ध्यान से देख लो, पढ़ो। परंतु पतरस ने कहा, अपना अपना नाम से पढ़ना हो। परंतु पतरस ने कहा, Read with your name. नहीं 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 प्रभु, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने कभी कोई हाँ, अपवित्र या हाँ, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। यही ये प्रॉब्लम। परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, हमारा उत्तर क्या मन में, नहीं प्रभु, मैंने ये जिंदगी में कभी किया ही नहीं। God हालेलुया। wants to do a new thing in your life, and your reply is, God, I have never done such thing. देखो अन्य जाति वाला आशीर्वाद क्यों है मालूम है? Why the blessings goes to the Gentiles, you know? अरे वो जो भी बोलेगा ना परमेश्वर वो मान लेता है। Whatever God says, He accepts. और हम क्यों आशीर्वाद नहीं है मालूम है? And why we are not हम blessed? परमेश्वर जो भी करेगा ना उसको पहला नहीं बोलते हम। Whatever God wants to do, we first say कितने लोग no. समझे? हालेलुया बोलो। How many of you are understood? Say The hallelujah. biggest problem we Christians have is हमारे पास क्या बड़ा प्रॉब्लम we are not ready to do accept something new that God is doing for us. जो कुछ नया हो रहा है वो एक्सेप्ट करने तैयार We are नहीं। not ready to accept it. हम तैयार नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कुछ नया कर रहा हूँ, God is saying I'm doing हम it, बोल रहे नहीं प्रभु, and we say no. नांगा आरक्षम आवदा आ रहे। We will do the same old thing. परमेश्वर बोलता है मैं कुछ नया करूंगा तेरी जिंदगी में, God is saying I'm going हम to do बोलते a हैं new नहीं thing. प्रभु, And you say no. मैं कभी ये किया ही नहीं। I have not done this. हाँ, आगे परमेश्वर का उत्तर देखना 15 में। दूसरी बार हाँ, उससे वाणी सुनाई दी, ध्यान सुनो, ऊपर से परमेश्वर अभी बोल रहा है, जो कुछ परमेश्वर ने हाँ, जो मैंने, शुद्ध ठहराया है, हाँ हाँ, उसे तो अशुद्ध मत ठहराइए। हालेलुया। Hallelujah. What God has made new, you don't say it's a old thing. परमेश्वर ने जो नया कर रहा है उसको आप पुराना है जो करके मत परमेश्वर ने शुद्ध किया है, कुछ तो बदला है, उसको तू मना मत कर। बोलो। What God has cleansed, you should not say now. हालेलुया, जोर से। Hallelujah. परमेश्वर आपके जिंदगी में नया करने वाला है, God is going to do a new thing, और ये नया चीज अगर होना है ना, and if this new thing has to आपको happen, उसको मना नहीं करना। you should not reject it. इसीलिए तीतस 1:15, तीतस के पुस्तक में 1:15 पढ़ेंगे। In the book of Titus, 1:15 chapter 1, verses 15. शुद्ध लोगों के लिए ध्यान से सुनो, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है। हालेलुया। Hallelujah. सच बोल रहा हूं, फॉर द प्योर एवरीथिंग इज प्योर। जो शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, और पर अशुद्ध और अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए देखा, अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरना उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, घर पे जाके पढ़ लेना। तीतस 1:15 बाद में पढ़ लेना। Titus 1:15 says, to the pure, Uh-huh. all things are pure, Yes. but to those who are defiled and Ah. unbelieving, हाँ, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपका या शुद्ध है ना, If your heart is pure, सब कुछ शुद्ध है। then everything is pure. ये शुद्ध नहीं है ना, If your heart is not, कितना भी अच्छा कपड़ा मैं पहन के आऊँ ना, no matter what I wear, कुछ भी मेरे लिए शुद्ध नहीं दिखेगा। nothing is. This is the biggest problem we all have here today. यही बड़ा समस्या है। God is definitely do something new in our life. परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, We are not ready to accept the new things. हम अपनाने तैयार नहीं है। It's not because God is not doing a new thing. इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर को नहीं करना It's है, because you are not new yet. क्योंकि आप नए नहीं हो उसमें। परमेश्वर नया करने तैयार है, God wants to do a new thing. उसको अपनाने के लिए आप भी तो नया होना चाहिए। To accept it, you You should are the become new. same old thinking people. आप वही सेम चीज You सोचो। are the same person as you were 10 years before. आप 10 साल पहले कैसे थे वैसे ही 10 है। साल पहला गुस्सा आता था, 10 years before you were with आज Raj. भी गुस्सा वैसे ही है। Today also you are holding the 10 same साल पहला anger. बड़बड़ 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 करते थे, 10 years before you speak a lot. आज भी बड़बड़ बड़बड़ कर। Today also you are speaking a lot. 10 साल पहले झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे आप, 10 years before you were ready for a fight. आज भी घर में झगड़ा हुआ तो जीत आपका ही होना चाहिए। Today also if there is a fight, If you want you to are win. the same old person, अगर आप सेम है, no matter what God does new in your life, जो परमेश्वर नया कर रहे हैं,
You will not fail it in your life. आपको वो महसूस नहीं होगा क्योंकि God आप has नहीं- already planned something new in your life, परमेश्वर ने नया प्लान किया है, but you are not ready to accept the new thing. आप रेडी नहीं है वो एक्सेप्ट करने। Here, God is telling Peter, पतरस को परमेश्वर कह रहे हैं, don't say unclean, which I made clean. मैंने जिसको शुद्ध बनाया उसको तू अशुद्ध मत कहना। जो चीज मैं बदलाव ला रहा हूँ, The things what I am cleaning, वो तू गलत मत बोल. don't tell it's unclean. Maybe 10 years before, your husband was not a good person. 10 साल पहले हो सकते कि आपका पति So ठीक now है। God told that I'm doing new thing. परमेश्वर आज आपको बोल रहे हैं कि मैं नया बना। That doesn't mean He's giving you a new husband. उसका मतलब ये That means ये नहीं कि नया- He has made that person new, but you are not ready to accept Him. उसका मतलब परमेश्वर उसको बदला है बट आप अपना This नहीं is how रहे। God is telling I'm making new thing. What we expect in our life, हम क्या एक्सपेक्ट करते new हैं? means a new house God will give me. नया मतलब एक नया घर मिलने New वाला means a new bike God will give me. है। नया मतलब नया बाइक मिलने वाला No, है। no, no. नहीं, God is telling I'm making everything new. परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ नया That means बना रहा हूँ। He's reworking on the things which was old. उसका मतलब जो पुराना था उस पे परमेश्वर वापस काम कर रहे हैं और नया बना रहे हैं। हाँ, पुराने को सही बना के आपको देना चाह रहा है, He wants to make the old thing new and give it to you. और आप उसको बोलते हैं इट्स अनक्लीन, ये पुराना है And परमेश्वर. what you are saying और that it's परमेश्वर आपको unclean. बोल रहा है मैं जो नया किया, What I have made new, तू कौन है उसको पुराना बोलने की? who are you to say it's old? हालेलुया. Hallelujah. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आशीर्वाद को खोना मत. do not lose the blessing of ये God. महीना नया चीज आपको मिलेगा. This month you are going to receive new आपके things. सोच के अनुसार नया नहीं होता हो. Not as per your अगर thought. परमेश्वर कुछ चीज को नया बोल रहा है, If God is saying something is तो new, जरूर उसमें कुछ तो नया है. that means something is new. हालेलुया. Hallelujah. आपका आशीर्वाद Your blessing, आपको नहीं मिला, if you have not received, इसीलिए वो पुराना बन के पड़ा है. that's why it's old. पर ये महीना This month वो आपको मिलेगा. you will receive, पुराना नहीं है वो. not old. आप नहीं बोल सकते ये तो मेरा पुराना आशीर्वाद है परमेश्वर. Don't tell that this is my old blessing. उसको परमेश्वर नया बना के देगा. God is making Hallelujah. Hallelujah. God will make everything new in your life. परमेश्वर सब कुछ आपका लाइफ में नया बना- Doors are going to open which was shut for a long time. नया नया द्वार खुलने वाला है जो काफी समय से Because it बंद was था। shut for a long time, ये काफी समय से there might be a dust उधर डस्ट or a rust. और रस्ट भी हो सकता है। But trust me, विश्वास करो it's new in your life. वो नया है आपका। Be ready to accept the new things God is doing in your life this season. परमेश्वर जो कर रहे हो अपनाने के लिए तैयार हो ये जाओ। नयापन जो परमेश्वर आपके जिंदगी में करने वाला है, ये अपनाने के लिए आप पहला तैयार रहना चाहिए. Be ready to accept new things from God. एक अन्य जाति का मनुष्य तैयार था, A person who did not know वो God was ready. आरती कर रहा था, He was doing और दान दे रहा था। idol worship and he was पर एक helping दिन people. अचानक से देवदूत बोल रहा है But when the angel मैं appeared, नया कर रहा हूँ, I'm doing a वो new. बोल रहा है ओके बोल रहा है. He is saying और okay. एक मनुष्य था जो हमेशा परमेश्वर का आराधना करता था, And there is one person who is always praying to God. फास्टिंग करता था, Fasting. अन्य भाषा बात करता था. Speaking in इसके tongues. पास परमेश्वर आके बोल रहे मैं नया कर रहा हूँ, ये बोल रहे मैंने कभी ये सुना ही नहीं बोल रहे. God is saying to him that I am doing new and Because he's not you ready know to- God, अगर आपको परमेश्वर को because जानते हो, you finished Bible, आप बाइबल पढ़ चुके because हैं, you come to church, आप चर्च आ रहे हो, because you've done a Bible course or something, आपने बाइबल स्टडी because किया, you worship God here in the altar, अगर आप यहाँ पर आके doesn't mean you know God. इसका मतलब ये नहीं कि His ways are higher than your ways. उनका जो सोच है वो आपसे His बहुत बड़ा thoughts है। are very higher than your thoughts. उनका जो मार्ग है वो आपसे Never काफी बड़ा put है। God in a box परमेश्वर को एक बॉक्स में मत and डालो tell God do like this. और बोलो परमेश्वर ऐसा करो। What He will do in your life जो परमेश्वर आपका लाइफ में doesn't करेगा have any rules or any box, brothers and sisters. उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन If He's नहीं going to है। do something new in your वो life, कुछ नया करने वाला the है, way will be new. वो जो The idea will be new. सब The वे नया process will रहेगा, be very new in your life. प्रोसेस जो है पूरा नया रहेगा। परमेश्वर नया करेगा When God does new things और उसके तरीका से ही and He करेगा. will do it in His own Hallelujah. way. Hallelujah. आप ये विश्वास करना, ये महीना परमेश्वर कुछ तो नया मेरे लिए करेगा. Just believe God is going to do something. बस new. इतना विश्वास करना, ये महीना साधारण महीना नहीं है. Except this is not an ordinary बाजू में month. बोलना ये साधारण महीना नहीं है. ये साधारण महीना नहीं है। बोलो ये साधारण परमेश्वर महीना मेरे जिंदगी में नहीं है। कुछ तो नया करने वाला है. God is going to do a new thing in my life. Hallelujah. Something new. Israel was a slave for Egypt. I guess a lot of years, more than 400 years something. They were slave to Egypt. इज़राइल के लोग काफी साल स्लेव बनकर रहे इजिप्ट One day में। suddenly God told that I'm going to redeem my people.
एक दिन परमेश्वर ने बोला कि मैं मेरे लोगों I'm going to को set my people free from all the bondages they are going through in their life. मैं मेरे लोगों को सारे बाधाओं से I'm going बाहर to make ले आऊं। something new in my people's life. मैं कुछ तो नया करने They were वाला हूं। excited to see something new in वो their लोग life. बहुत उत्साहित हो They गए, were ready for the blessing. वो लोग तैयार हो They गए, were waiting that God will do something new in वो their लोग life. इंतजार में थे, They came out of the slavery. वो लोग बाहर They आए। were walking in the desert. जब वो लोग रेगिस्तान They में were चले, hungry. भूख लगा, God gave them food to eat. परमेश्वर ने मन्ना दिया, God gave something new to eat. परमेश्वर ने कुछ तो They were नया दिया। always eating chicken, mutton, and all. हमेशा चिकन मटन खा रहे But थे, here, God was giving something new to eat. उन लोग को नया मिला, मन्ना मिला था, But they were not satisfied. वो लोग खुश नहीं थे। हम पढ़ेंगे वो गिनती के पुस्तक में द बुक ऑफ नंबर्स 11 में 11 4, 5 और 6 पढ़ेंगे. 11 verses 4, 5 and 6. Now the mixed multitude who were among them yielding to intense craving. हम्म, So the children of Israel also wept again and said, हम्म, Who will give us meat to eat? हाँ हाँ We remember the fish which we ate freely in Egypt, हाँ the cucumbers, Uh-huh. the melons, Uh. the leeks, the onions, and the garlic. Okay. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. हालेलुया. हिंदी में पढ़ेंगे. गिनती 4 में 11 में 4, 5, 6. जो मिली जुली हाँ भीड़ उनके साथ थी हाँ और बेहतर भोजन की हाँ. लालसा करने लगी। ध्यान से सुनो. ये लोग अरे गुलाम बन के थे इजिप्ट में. These people were slaves in अरे कोई इनको Egypt. भाव भी नहीं देता था. Nobody used to see them. इनको मारते थे लोग पकड़ के. They were as a slave. जो भी खाना मिलता था, Whatever food बचा कुचा खाना मिलता था. they were getting leftovers. इनको परमेश्वर ने कुछ नया करने के लिए वो गुलामी से बाहर लेके आया. God wanted to do something new. बाहर and आने के brought बाद them इनको out. परमेश्वर अच्छा खाना दे रहा है. Now God is giving और good इनका food. मुंह में क्या आ रहा है देखो. And look at them. हाँ for this. पढ़ना. और फिर इजरायली भी हाँ रोने और कहने लगे, हाँ हाँ हमें मांस खाने को हाँ. कौन देगा? कौन देगा. हाँ आगे. वे हाँ मछलियां स्मरण है हाँ जो हम मिस्र में हाँ सेत में खाया करते थे, हाँ और वे खीरे हाँ और खरबूजे हाँ और गंदने हाँ। और प्याज हाँ। और लहसुन भी। हाँ. परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। हाँ हाँ यहाँ पर इस इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। Hallelujah. Brothers and sisters, listen very carefully. These people were a slave in Egypt. ये लोग गुलाम थे मिस्र देश में. क्या थे? These people were slaves in सुबह 5 Egypt. बजे उठना पड़ता था इनको. कितना बजे? They had to wake up at 5. रात को 12 बजे सोना पड़ता. They कितना had बजे? to sleep at 12. इनको दिन में एक ही बार खाना मिलता था. कितने बार? They used to get food only once. और बचा हुआ खाना मिलता था. And they used to get leftovers. इनके बच्चे पत्नी सेफ नहीं थे. Their children and women were not safe. इनको सिर्फ और सिर्फ मार मिलता था. They used to get all beatings. ऐसा एक गुलामी जिंदगी से परमेश्वर बाहर लेके आ रहा है. It was a slave life and God got them out. कुछ तो नया किया है. And something और ये new. लोग बोल रहे हमको खाना नहीं दिया परमेश्वर ने. God did new and they are इनको saying क्या they are खाना not मिल रहा था मालूम है? What? जो देवदूत खाना खा रहे थे ना, This manna is the food of angels. वो खाना मिल रहा था. They were getting इसलिए ये that. लोग बीमार ही नहीं पड़े. 40 साल जब रेगिस्तान में चल रहे थे, ये लोग बीमार नहीं हुए. That's why they did not feel sick. इनका पैर फटा नहीं. एक दिन अगर अपन चलेंगे पैर नहीं फटेगा अपना. When we walk, how our legs touch pain. 40 साल इनका कपड़ा कम छोटा नहीं हुआ, ना इनका पैर फटा, ना ये लोग बीमार थे. These 40 years, when God led them, they never felt sick, they never had pain, and they never had to buy new clothes. क्योंकि वो लोग को मन्ना मिल रहा था जो देवदूत का खाना था. Because they had to eat the manna from heaven. God was doing new thing in their life परमेश्वर नया चीज कर and रहे they're हैं telling our old life was so good. और वो लोग बोल रहे कि मेरा पुराना जीवन अच्छा था. We were eating cucumbers, we were eating watermelons, we were eating garlic, we were eating chicken, mutton. हम fish में तवा फ्राई करके खा रहे थे. These people are telling God that we had melons, cucumbers, onions, garlic, fish to eat. This is the same problem we have in our life. Same thing we repeat. God makes new thing परमेश्वर नया चीज कर रहे हैं. that doesn't feel new. You know why? वो नया नहीं लगता है Because you want something new in your own way. क्योंकि आपको नया चाहिए आपके तरीका में. मैं जैसा बोला, परमेश्वर कुछ चीज को बदलता है
तो मतलब उसको अपना लेने का। When God makes something new, accept it. आप नहीं बोलेंगे यही तो मेरे पास था ऑलरेडी, You say, God, this is what I had पर before. गॉड बोल रहा है मैंने नया किया है, मतलब उसमें नया कुछ तो है। When God says, I'm doing something That new, is that why is you something don't new. feel new in your life, इसलिए कुछ नया ही नहीं लगता है, because you are not new yourself. क्योंकि आप खुद नए नहीं हो. अगर नया चीज को अपनाना है ना, If you want new thing, आपको पहले नया बनना है। you have to become new. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, आवाज से। Brothers and sisters, this month God will do many things new in your life. ये जो महीना है परमेश्वर Be का ready आपके to लिए. accept the new thing in your life. तैयार हो जाओ नया चीज ले अपनाने. पहला आप नया बन जाओ आज। You should become new. अगर आप नया नहीं बनेंगे ना, If you're not becoming new, इजराइल जैसा आप भी बोलेंगे हमारा पुराना जिंदगी में ये था, कितना बड़ा गाड़ी था, कार था, बाइक था, मेरे पास ये था, मेरा पति ऐसा था, मेरा पत्नी ऐसी थी शादी के टाइम, अभी नहीं है, वो नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अब जो कर रहा है यही नया है आपकी जिंदगी में। when God does the new thing, don't tell I was living a life like that, like a princess. I had this, I हाँ. had that. प्रिंसेस अभी भी आप प्रिंसेस ही है, सिर्फ आपका किंगडम चेंज हो गया। आपको क्या लगता है डैडी के घर पे मैं प्रिंसेस है, हर बेटी को क्या लगता है आई एम अ प्रिंसेस एट माय डैड्स हाउस। किधर Every girl आवाज से बोलो, thinks मेरा that. माता पिता के घर में मैं प्रिंसेस को क्या बोलते हैं, देवसेना नहीं, राजा माता। कुछ तो मेरा माता हाँ इलवसी तमिल में हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंवर, राजकुमारी। राजकुमारी. सब बेटी को क्या लगता है हमने, मैं मेरा डैडी के घर पे मैं कौन थी, तेरा डैडी के घर पे तू राजकुमारी है, अभी तेरा राज्य बदल गया, अभी भी तू राजकुमारी है, सिर्फ सोच तेरा यहाँ नहीं है बस। अगर तेरा सोच में यहाँ तू राजकुमारी करके आ गया ना, तो जिस घर पे भी जाएगी ना तो राजकुमारी ही रहेगी। You think that I was at a princess at my father's house. Now after getting married, now also you are a princess. But first it has to come in your thought. नया Wherever you जगह stay, बदला है, पहला राज्य अलग था, अभी नया राज्य दिया है, The पर यहाँ kingdom पर राजकुमारी बनने तू तैयार नहीं है। the kingdom is new, but you are not ready to become a princess. Always remember, brothers and एक sisters, चीज हमेशा याद रखो, if something has to be new in your life, कुछ नया होना है, you have to be new first. आपको पहला बदलना है. God is definitely doing something new in your life this month. परमेश्वर कुछ ना कुछ Trust me, the नया. word said, write and keep. वचन क्या बोला कि Write लिख के the रखो. date, time, and the preacher who I am preaching here, write it and keep. God is going new thing in your life. Amen. आप लिख के रखो कि परमेश्वर कुछ नया करेगा. आज का दिन, आज का समय जो प्रीचर को पता है वो. But the new things need a new mindset. जो नया चीज है उसके लिए नया मन. कुछ लोग वेट करते हैं 12 बजे टिंग बजेगा तो ये वही नया थिंग है मेरे लिए। Some people think this time. कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे को बोलेंगे तो मैं शादी कर लूंगी। If God says I will get No, married. don't put that formula in your life, okay? अभी परमेश्वर का वो फॉर्मूला मत अप्लाई करो. God will do something new. परमेश्वर कुछ नया कर रहे हैं. People will say, I'm waiting to God do in my life. लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर करने के Keep लिए. waiting. आप इंतजार में हो. 80-90 साल तक इंतजार ही करो, Keep waiting till 80-90. आपका आशीर्वाद जंग पकड़ के बैठा रहेगा। Your blessings will be rusted. and Because you were stale. not ready to accept what God did new in your life. क्योंकि आप तैयार नहीं थे जो परमेश्वर नया. आपका अनुसार परमेश्वर कभी नहीं करेगा। It is not as per you. What you आपका are thinking. फॉर्मूला में कभी परमेश्वर चलेगा ही नहीं। God will not walk in your formula. लास्ट टाइम ऐसा किया था, Last time he did ये this. टाइम भी ऐसा नहीं करेगा, This time also he will not do this. नया करेगा। He will do new. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग तैयार है नया मेरे जिंदगी में आने के लिए? How many of you are ready for a new thing? God will do new things, brothers and sisters. परमेश्वर नया चीज आपका करेगा. पति जो इतना साल सही नहीं था, The husband who is not proper, अभी सही हो जाएगा। now he will be पर proper. आप नया पति के लिए इंतजार मत करो। Don't expect a new husband. आपकी पत्नी Your wife जो सही नहीं थी who was not proper, वो सही हो जाएगी, she will become new. पर आप नया मतलब नया का इंतजार मत करो। Don't think I will get a new wife. वो इंसान को परमेश्वर नया बनाएगा। God will make that person. आप रेडी हो जाओ उनको उनका नयापन को एक्सेप्ट करने के लिए। You be ready to accept that. Hallelujah. Hallelujah. This month we will see new things in our life. हम नया चीज महसूस करेंगे. We will not be like Israel. हम इजराइल के लोगों की जैसा नहीं रहेंगे. मेरे को यही मिला, मैं उधर हो खा रहा था, अरे मेरे डैडी के घर पे ऐसा था, Don't keep saying the old things I did. पुराना this, I कंपनी did. में मैं कैसा था, How I was in old. सब मालूम है हमको। Everything will. राजकुमारी, राजकुमार, I was a prince and princess in the 1 kingdom. लाख 2 लाख सब मालूम। We know every old. इस महीना परमेश्वर नया कर, This month God is और doing a नया new चाहे छोटा होने दे, whether it is
या फिर बहुत बड़ा होने दें, small or big. फिर भी उसको खुशी खुशी हम ले लेंगे. We will accept wholeheartedly with Because God is happiness. telling, what I did pure, what I made new, you are no one to say it is unclean or old. जो मैंने नया किया वो तुम कौन है बोलने की वो अशुद्ध है. अगर आपकी जिंदगी में कुछ नया होना है ना, If something new has to happen in आप your life, तैयार हो जाओ. you have to become. God, Jesus was with his people, okay? जब यीशु लोगों के साथ थे, 12 देवदूत को बोला कि मैं मर के जी उठूंगा करके. 12 of them he told that I will die and I will rise वो मर up गया. again. He was dead. जी उठेगा करके लोग इंतजार ही नहीं किए, Nobody was expecting क्योंकि that. आज तक उन लोग ने ऐसा कुछ लाइफ में देखा ही नहीं था. Because nobody has seen someone going to grave and coming back. जी उठ गया एक दिन. And when he came back, अब सबको लग रहा है कि अरे वाह ये क्या हो गया. and everyone was shocked. That what उसमें से happened. भी एक बंदा अपने जैसा था. And out of that one person, was जब like, तक मैं देखूंगा नहीं, till the time I will जब तक not, मैं छूऊंगा नहीं हाथ डाल के, till the time I don't touch, मैं नहीं भरोसा करूं. I will not believe. We also do the same thing. हम भी करते. Until unless it is not happening, I don't see a big change in my life, I'll not accept it. बड़ा बदलाव नहीं आएगा तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा. God, you will give me this partner, then only I'll accept that is from you. आपने ये पार्टनर दिया तो ही मैं एक्सेप्ट इतना हाइट रहना चाहिए परमेश्वर, It should be this tall, इतना पैसा रहना चाहिए परमेश्वर, this much money, ये गाड़ी रहना चाहिए. this car, ಮಂಜೆ ಕಲರ್ ಸೆಟಪ್ ಉಟ್ಟು ಬಂದಾದ ನಿಂಗೆ ಕುರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ. this color shirt he should be wearing. Then only You always ask God a sign. you ask. आप परमेश्वर से चिन्ह पूछते हो. God, if it is happening in this way, ऐसा हो रहा है then it's तो from you, God. I then ये believe. आपसे है. मैं विश्वास करता हूँ. No, no, no. ऐसा नहीं होता. Don't be a fool like Israel. ऐसा मत बनो इज़राइल जैसे. Thomas was asking us people, until unless I don't see Jesus, I don't touch him, I will not believe he has resurrected. थॉमस ने बोला कि जब तक मैं परमेश्वर को छूऊंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठे. And Jesus came to Thomas. और जीसस आए He was थॉमस like, touch me. जीसस चल टच कर. Now he's not touching. ना अभी वो He's like, छूने no, no, लगे. no, I believe you, Jesus. I am so sorry, I believe you. अब now he's saying that I believe you. Jesus replied him very nicely. John 20, In the book of John, यूहन्ना में 29. यूहन्ना 20 में 29 रीड करेंगे. योग्यता से बढ़ के दिया. Jesus said to him, Thomas, हाँ, because you have seen me, हाँ. you have believed. हाँ, Blessed are those हाँ. who have not seen and yet have believed. हालेलुया. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे. यीशु ने उससे कहा, ध्यान सुनो. यीशु ने अपने जैसे लोग से कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया. हाँ, तूने तो जब बड़ा चीज दिखा तो ही विश्वास किया. आगे, धन्य है वे वो लोग धन्य है जिन्होंने मैंने जब बोला मैं नया चीज करूंगा. बिना देख के विश्वास किया. हालेलुया. हालेलुया. See, don't be like this, okay? ऐसा मत रो. If something big happen in my life, I'll believe in God. ऐसा मत बोलो कि कुछ बड़ा होने के बाद मैं You will do विश्वास this, God, I'll believe in you. आप ऐसा करो तो मैं विश्वास करूंगा. If God said there is something new, अगर परमेश्वर बोल रहे कुछ नया है, God say I'm going to make something new in your life, अगर परमेश्वर बोल रहे कि मैं कुछ नया करूंगा, it's already started in your life. that means वो already शुरुआत Already हो work गया. in progress in your life. वो already शुरुआत हो गया. But it's your work, your thing to believe that it is already working in my life. वो आपका काम है विश्वास करो कि ये मेरा है. Hallelujah. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करें परमेश्वर कुछ How तो many नया of you करने all वाला है. believe God is going to do a new thing? Hallelujah. हालेलुया. आप क्या सोच के यहाँ आए थे मुझे पता नहीं. I don't know what you all thought and came. आपका छाप क्या था मुझे भी पता नहीं. I don't know what you आपका all thought जरूरत तो and मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ लोग का जरूरत बहुत बड़ा है. some of your needs are very big. But God is telling you one thing. परमेश्वर बता रहे हैं I am making new things. मैं नया कर रहा हूँ. I'm making everything new. मैं नया कर रहा हूँ. Write and keep. लिख के रखो. It will happen in your life. वो होगा आपका जीवन में. Not in your own way, आपने जैसा सोचा वैसा but नहीं. in His way. उन्होंने जैसा सोचा And whatever He does, और वो भी जो बोलते it will be higher than what you asked. वो आपने मांगा उससे बड़ा रहेगा. It will be big than what you desired. आपने जो चाहत रखा उससे बड़ा And it रहेगा. will be very great than what you thought. वो बहुत बड़ा रहेगा आपका सोच. Hallelujah. 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 परमेश्वर ये महीना बड़ा काम करेगा. This month God is going to do a new thing. परमेश्वर ये महीना नया काम करेगा. This month God is going to do a new thing. परमेश्वर उसके तरीके से हमें आशीर्वाद करेगा. He is going to bless us in His own way. हम सब खड़े हो जाएंगे. Let's raise up to our feet.
रोमियो को पुस्तक में 12 में 2 पढ़ेंगे. In the book of Romans, chapter 12, verses 2. Let's read Romeo 12 में 2. Romans chapter 12 verses 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. हिंदी में. और इस संसार के और इस संसार के सदृश न बनो, संसार के सोच, संसार के तरीके में आप मत पढ़ो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से. ध्यान से सुनो. क्या नया होना है पहला? What has to become new बुद्धि. first? बुद्धि हाथ रख के बताओ ऐसा. Your बुद्धि. mind has to be ये renewed. बुद्धि नया होएगा तो आगे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. देखा, ये बुद्धि नया कर दो आज, आपका चाल चलन सब बदल जाएगा. Your ways would be perfect. इसीलिए वचन पढ़ा, जिसको जो शुद्ध है ना उसके लिए सब चीज शुद्ध है. जो अपने आप में नयापन लाया ना उसके लिए हर चीज नया होता है. The one who is ready for newness and gets something new inside, for him everything will be अगर new. तुम अंदर से पुराने हो के If you are old नया चीज आपकी जिंदगी में आएगा तो and you want new things, आप अपना सकते हैं उसको. will you be able to accept new things what God sends? वचन में लिखा है, बाद में पढ़ लेना. Word says, एक नया कपड़ा में in a new पुराना कपड़ा फाड़ के लेके आके सिलाएंगे तो in a new cloth, if you stitch the old one, क्या वो नया रहेगा? will it be new? या तो एक पुराना कपड़ा में Or in a old cloth, नया कपड़े का एक छोटा भाग लेके आके सिलाएंगे तो वो नया हो सकता है. if you bring a piece of new cloth and stitch it अगर with आप पुराने सोच में जिएंगे तो if you are in old thoughts, अब अभी भी वही इंसान जो मैं थी मैं रहूंगी, मेरे को कोई नहीं बदल सकता है. If मैं you ताली say- नहीं बजाएगी मतलब मैं नहीं बजाएगी. क्यों बजाओ? if तुम मत बजाओ, if you say I प्लीज will, मत बजाओ. पर अगर आप आपका पुराना तरीके को सोच को आज नहीं बदलेंगे, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा ना, तो परमेश्वर जो नया कर रहा है ना वो हमेशा आपके लिए नया नहीं लगेगा. if you are not ready to renew your mind, you will not be able to witness the new things what God is going to do in पढ़ your के life. खत्म कर. जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ और भावती हाँ और सिद्ध इच्छा हाँ. अनुभव से मालूम करते रहो. Hallelujah. If something new has to happen in your life, brothers and कुछ तो sisters, नया होना चाहिए आपका जीवन में. you have to renew your mind to be new. आपको रिन्यू करना है, नया बनाना है आपका मन. मैं नहीं जानता आप लोग में से कितने लोग को समझा आज परमेश्वर क्या बात कर रहा है. I don't know how many of you all took it what God speaks अगर to you. समझ गए आप लोग If you understood, आप बच गए, you are saved. नहीं तो इजराइल जैसा रेगिस्तान पे आप खत्म हो जाए. Otherwise, in your wilderness, your life is. They were expecting new. वो लोग नया 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 एक्सपेक्ट कर रहे थे. Every day new was happening with them. रोज नया हो रहा They था. were getting fresh manna. उनको नया मन्ना मिला. Cloud was protecting them by day. जो बादल है वो उन्हें सुरक्षित There was रखा. fire in the night to take care of them. आग था रात को उजाला So बनने. much of new things was happening every day in their life. नया नया चीज रोज हुआ. Their kids were not getting ill. जो बच्चे थे बीमार नहीं पड़े. They were not getting old. वो लोग एज नहीं हो रहे थे. So much new things were happening every day, इतना कुछ नया हुआ. and they were telling God, make something new. और वो लोग परमेश्वर को बोल रहे Today हैं in your life also, God is doing everything new. आज परमेश्वर आपका जीवन में भी कुछ But है. renew your mind आपका जो मन है उसको रिन्यू to करो. accept the new thing in your life. परमेश्वर जो नया कर रहे हो परमेश्वर आपके जिंदगी में नया चीज कर रहा है. the things what God is doing new, वो नया चीज को अपनाने के लिए for accepting that new, अपने आप को आज नया बना दे. you make yourself. आपको बोलने का परमेश्वर मेरे को नया बना दे. You have to tell God, आप make जो भी नया कर रहे हैं उसको अपनाना चाहिए. मैं you have to accept आप all. नया कर देंगे You will do new, पर मैं जैसा मांगती हूँ वैसा नहीं. not in my हो way. सकता है जो आपका घर था वो दुश्मन के पास था वो आपको लेके दे सकता है. Maybe your house You- was with your enemy. आप You might कुछ get. तो नया मांग रहे, You are asking new. वो नया ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दिया है. God has already given Just the new. be ready to accept what God is doing in your life. तैयार हो जाओ परमेश्वर हम की अपने आंखों को बंद करेंगे. Let's keep our eyes closed. ये महीना परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है. God is going to make all things. Your life is going to be new in this month. आपका लाइफ जो है वो नया बने. Your family will feel the new thing in your life.
जो परिवार है वो महसूस करेगा Your नया job, in job places, you will feel new things. नया नया चीज आपके कामों में होगा। Your husband will change. आपका पति Your बदलेगा, wife will change. आपकी पत्नी Your बदलेगी, children will obey you. बच्चे आपका बात सुनने Your parents लगेंगे will start loving you. और माता पिता प्यार से रहने लगेंगे। आप नया नया गोल्ड ले सकते हैं, You may bring new things, या जो गोल्ड ऑलरेडी गिरवी में है वो आपके पास आएगा, the things which are as a collateral will come back to वो you. भी नया ही है। हम क्या सोचते हैं, नया मतलब जो गिरवी में वो भी आना चाहिए और नया सोना भी आना चाहिए। What do you think that I should get new gold and I should get अरे all जो the गया है things वो that दे I- रहा है, वो भी तो नया है। What when that was also yours, right? God is doing new thing in your life. परमेश्वर नया नया चीज कर रहा है। Be ready to accept that new thing. अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। Place your hands on your head आपका हाथ को आपके सिर पे रखो and raise one hand towards heaven और एक हाथ परमेश्वर की तरफ रखो and tell God, और बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मुझे नया बना दे। मेक मी न्यू। मैं विश्वास करता हूँ तू नया चीज करने वाला है। आई बिलीव लॉर्ड यू आर गोइंग टू डू न्यू मैं थिंग। जानता हूँ तू जरूर नया चीज करेगा आई परमेश्वर। नो यू विल डू अ न्यू थिंग पर मैं पत्रुस जैसा नहीं बोलना चाहिए ये नया नहीं है। बट आई विल नॉट बी लाइक पीटर हु सेज। मैं हिजराइल जैसा नहीं बोलूंगा कि ये नया नहीं है। आई विल नॉट बी लाइक इज़राइल हु सेज। मैं थॉमस जैसा नहीं बोलूंगा, जब तक वो नहीं हो रहा मैं विश्वास नहीं करूंगा। आई विल नॉट लाइक थॉमस हु सेज दैट मैं आई विल नॉट विश्वास बिलीव करूंगा इन तू नया चीज ऑलरेडी मेरे लाइफ में शुरू कर आई दिया है। बिलीव लॉर्ड दैट यू आर डूइंग अ न्यू सब थिंग। बोलना, मेरा सोच को आज नया बना दे प्रभु। परमेश्वर मेरा सोच नया मेरे बना। चाल चलन को नया बना दे मेक प्रभु। माय वेज न्यू। मेरे चाहत को नया बना दे प्रभु। मेक माय डिजायर्स, मुझे नया बना दे मेक परमेश्वर। मी न्यू। और जब मैं नया बन गया हूँ, And when I am new, मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ नया हो जाएगा। I know Lord everything will become. Keep praying, don't be silent, brothers and sisters. आप चुपचाप मत रहना, प्रार्थना Ask God to करना। renew everything in you. आपके अंदर जो भी है सब कुछ नया बना। Renew your thought, आपका सोच को नया, renew your desires, आपका चाहत को नया, renew your dreams. आपका जो सपना है उसको And नया। when everything start renewing in your life, जब सब कुछ नया बनेगा, you will be a new person. आप नया बन जाओ। The moment you will be new, जब आप नया बनोगे, you will see the new things in your life. आप नया नया चीज करो। Don't be silent. Open up your heart and talk to God. चुप मत रहना, परमेश्वर से बात करो। Confess Him whatever you have lost in your life. जो भी आपने खोया वो परमेश्वर को बताओ। Confess Him whatever you have mistreated in your life. जो भी आपने अच्छे से उपयोग नहीं किया परमेश्वर को Confess बताओ। to Him what you have left it. You have not considered it as a new thing in your life. जो आपने नया करके माना नहीं वो आप परमेश्वर को बोलो। आपको बोलना है क्या क्या चीज आपने इजराइल के जैसा मन्ना को नहीं छुआ बोला है। आपने क्या क्या चीज को मना किया। परमेश्वर जो बोल रहा था कि ले ले, तुमने बोला कि ये मेरा नहीं है। आज आपको आपके मुंह से गवाह उसको बोलना है, मैंने गलत किया परमेश्वर। आपने बहुत चीज नया किया था पर उसे अपनाने में तैयार नहीं थी, मैं तैयार नहीं था। आपने नया कर रहा था फिर मैंने बोला ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा नहीं है। और जब परमेश्वर ने बोला ये तेरे लिए, हम खोने बोले मैं मेरा नहीं। ऐसा जो भी चीज ने आपने मना किया है और आप खो गए और आज आप पूछ रहे मेरे पास नया कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको आज आपके मुंह से बोलना है मैंने गलती करके बहुत चीज को मना किया। जैसा पतरस ने मना किया मैंने भी मना किया, जैसे थॉमस ने शक किया मैंने भी शक किया, जैसे तेरे लोग ने, इजराइल के लोग ने, अरे तू जो अच्छा काम कर रहा था उसको देख के बोले अच्छा नहीं है, मैंने भी आज वो सब किया है। आपको आपके मुंह से ये चीज बोलना है और जब बोलेंगे तब आप अपने आप नया बन जाएंगे। It is time to confess and renew yourself. Until and unless you don't open your mouth, until and unless you don't confess to God that you have lost many blessings only because of your own mistake. It's not because of God. God was doing new thing in your life. You were not ready to accept because you expected a old formula. आप चाह रहे थे परमेश्वर मेरे जिंदगी में ऐसा ही करेगा, आप चाह रहे थे मेरे जिंदगी में यही होना है। नहीं, नया चीज नया तरीके से उसके तरीके से होता है। पर आज आपने बहुत सारी चीज आपकी जिंदगी में खोया है, सिर्फ एक ही कारण, वो आप और मैं है। तो आप अपने मुंह को खोल के आपको इतना ही बोलना है परमेश्वर मैंने गलत किया, परमेश्वर मैंने बहुत सारे चीज को मेरे लाइफ में खो गया, आज मैं ऐसा हूँ इसका कारण सिर्फ मैं है परमेश्वर और कोई नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ना मेरे पति को बोलूंगा, ना मेरे पत्नी को बोलूंगा, ना मेरे माता पिता, ना मेरे बच्चे, ना मेरे आजू बाजू रहने वाले। मैं जो है आज इसका सिर्फ गलती मैं अकेला हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर, मुझे नया बना परमेश्वर। तो जो नया करने वाला है उसके लिए मैं पहला नया बनना चाहिए। आप मुंह खोल के प्रार्थना करो, कोई भी शांत मत रहो। इट्स टाइम टू प्रे एंड बी अ न्यू पर्सन टुडे। आज यहाँ से आप बाहर जब जाएंगे आप एक नया मनुष्य बन के जाना पड़ेगा। जब आप नया मनुष्य बन जाएंगे ना,
आपको आपके आंखों के सामने नया चीज दिखेगा, आप तब मान लेंगे कि परमेश्वर ने कुछ नया किया है। सो ओपन अप योर माउथ, टॉक टू गॉड, गेट रिन्यूड इन क्राइस्ट, बिकॉज इन क्राइस्ट वी ऑल आर न्यू क्रिएशन। टॉक, ओपन, स्पीक, प्रे करो, प्रार्थना करो, कोई शांत मत रहो, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो, कोई भी शांत मत रहो, सब अपने मुंह खोल के प्रार्थना करो। यस गॉड, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रे करो, प्रे करो, कोई भी साइलेंट मत रहना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Hallelujah. Thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं We प्रभु। thank you for this time. हम विश्वास करते हैं आप नया करने वाले हैं प्रभु। We believe that you are doing new हमको things. पूरा विश्वास है आप कुछ तो नया शुरू किया हमारे जिंदगी में प्रभु, God, we believe that you have started a new thing in और our वो life. नयापन हमसे शुरू हुआ है प्रभु। Let that new thing मैं start. यहाँ पर जो भी है इनके लिए प्रार्थना करता हूँ I pray प्रभु, for all the people who और are जो here. लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना I pray करता for हूँ। the people who are watching जो भी us लोग online. अपने हाथ अपने सिर पर रखा है उनके लिए मैं प्रार्थना I करता pray हूँ for प्रभु। all the people who are keeping their hand on आप their head. इनको नया किया है प्रभु। You had made them new. इनके इससे पहले ये कैसे थे मैं नहीं जानता, I don't know how they were पर before, आज से ये लोग नया है प्रभु। but today they are new. Lord. इनका चाल चलन सब नया हुआ है प्रभु, All their things are making, और ये नया हुआ है इसीलिए and because they are new, नया चीज इनकी जिंदगी में होने वाला है प्रभु। new things are going. नया दरवाजा खुलने वाला है प्रभु। New doors are going to open. बहुत सारे आशीर्वाद इनके हाथ में आसानी से मिलने वाला A है lot of blessings are going to ये be मई received in महीने their में life. प्रभु। This month, तो बहुत नया काम इनके लिए करने you वाला are going to do a lot of new है। I things. bless these people who are standing here God. हर एक जन को मैं आशीर्वाद I करता pray for the हूँ people who are watching online also और God. उनको भी जो ऑनलाइन You are going to do something new in their life God, आप नया करने वाले हो and this new thing will bring many new blessings in their और life. ये नया चीज जो है काफी नया Thank you for renewing us God today. परमेश्वर आप हमें नया बना Thank रहे you हो for making us understand what is new things. परमेश्वर आपने हमें समझा है इसलिए धन्यवाद We will accept whatever changes you are bringing in our life God. जो भी आप चेंजेस ला रहे हैं We will हम not वो complain, अपनाएंगे। God. हम नहीं कंप्लेन We will not murmur like the Israel people God. हम कंप्लेन नहीं करेंगे इजराइल लोगों के जैसे We will accept the change God is doing in our life God. जो भी आप कर रहे हो हम accept Bless each and every one God. जो लोग यहाँ पर है हर I एक pray you protect them this whole month God. इन्हें सुरक्षित रखो I परमेश्वर pray you give them good food to eat this month God. अच्छा खाना दो परमेश्वर Good health God. अच्छा सेहत I pray you bless them financially this month God. आर्थिक स्थिति इनका I बदल दो pray परमेश्वर। you restore them whatever they have lost last 4 months God. जो भी 4 महीने में खोए हैं वो वापस Let them be आपको always a giving hand God. हमेशा देने वाला बनो You build their houses God. परमेश्वर का घर आप You बनाओ build their family God. उनका परिवार आप You बनाओ build them God. इन्हें आप बनाओ परमेश्वर Until we meet next time God. वापस हम मिलने You have to take care of them all God. आप परमेश्वर इन्हें सुरक्षित I pray God. मैं प्रार्थना Thank you for this wonderful time you have given us God. ये टाइम के लिए Thank धन्यवाद you for the wonderful word God. ये वचन के लिए धन्यवाद मैं ना लायक हूँ प्रभु ये वचन के लिए, वी आर नॉट वर्दी टू पर रिसीव आपने हमारे द्वारा ये काम किया इसके लिए धन्यवाद। बट यू डिड दैट वर्क टू अस आज के दिन के लिए जो भी मदद की है, जो भी सहायता की, हम सबको आशीर्वाद करते हैं प्रभु। whoever has helped us today we bless them आज दुनिया में जो भी आराधना हो रहा है, सब जगह आपका नाम लोग को पता चलना चाहिए प्रभु। wherever there is worship and praise let people know you Lord What we have received, let all the people in this world receive. जो हमें मिला है वो सबको मिलने दो Thank you for this lovely day, God. ये अच्छा दिन Thank you for making everything new in our life, God. सब नया बना है इसलिए Thank you for making us anew today. हमें बनाया नया इसलिए धन्यवाद We give all praises to you, God. ये सब आपके देते We honor you, we bless you, God.
और मैं आपको आदर करता हूँ और எந்த குறை இருந்தாலும் மன்னிச்சிருங்கப்பா Lord, if there is any mistake in us, कुछ भी कमी है तो हमें माफ करो प्रभु Lord, if there is any lack in us, हमें नया कर दो प्रभु make us. हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते In हैं the name of Jesus, आमीन Amen. आमीन आमीन We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.